الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و ہادینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الشیخ الامام الاستاذ شفیق الرحمن الندوی المدرس بدار العلوم ندوۃ العلماء اللخنو حفظہ اللہ تعالی قال مدت المسح علی الخفین۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، یہ کتاب ہے الفقہ المیسر اور اس کا پہلا حصہ کتاب الطہارہ کا آخری فصل المسح علی الخفین کا ایک ذیلی عنوان مدت المسح علی الخفین کی بات چل رہی ہے۔ مدت المسح علی الخفین کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے بندگان پر یہ فضل اور یہ احسان فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے پاؤں دھونے کے بجائے اپنے پاؤں پر لگے ہوئے جو مخصوص اور مشروط موزے ہیں ان پر مسح کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسح کب سے کب تک کیا جا سکتا ہے؟ ایک انسان کا مسح کرنا چمڑے کے موضوع پر یا مخصوص اور مشروط موضوع پر کب سے کیا جا سکتا ہے، اور ایک انسان کا کیا ہوا مسح کب تک رہ سکتا ہے اور اس سے کب تک فائدہ لیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدت مسح، چمڑوں کے موضوع پر مسح کرنے کی مدت۔ اس کو سمجھانے کے لیے اور بھی آسان کیا جائے گا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب ایک انسان وضو کرے، وضو کرنے کے بعد، وضو مکمل ہونے کے بعد اپنے پاؤں پر چمڑوں کے موضوع کو پہن لے، اس کے بعد جب کبھی اس سے حدث لاحق ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، وہ وضو کا ٹوٹ جانا، اس کا وقت لکھنا اور اس وقت کا یاد رکھنا اس شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جس وقت اس کا وضو کرنے کے بعد اور موزے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جب اس کا وضو ٹوٹ جائے، جس وقت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس وقت کو یاد رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس وضو ٹوٹنے کے بعد چونکہ اس کو وضو دوبارہ کرنا ہے، اب دوبارہ جب یہ وضو کرے گا تو چہرے کو دھوئے گا، ہاتھ پاؤں کو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، لیکن اگر پاؤں پر اس کے موزے لگے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ کب تک اس کا مسح چلتا رہے گا؟ چونکہ جس وقت اس کا وضو ٹوٹا ہے، مثلاً 12:10 پر اس کا وضو ٹوٹا ہے، آج کے 12:10 پر اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اس کے موزے پر مسح کرنے کی مدت شروع ہو گئی۔ اگلے دن 12:10 تک اس کے پاؤں پر یہ موزے پہنے ہوئے ہیں، اس نے ان 12 اور 24 گھنٹوں کے اندر موزہ نہیں اتارا ہے۔ 12:10 سے لے کر اگلے دن 12:10 یا اسی طریقے سے جب 24 گھنٹے اس کے ہو جائیں، 12:10 سے لے کر اگلے 24 گھنٹے ہونے تک، ایک دن اور ایک رات، جس وقت 24 گھنٹے مکمل ہو جاتے ہیں 12:10 سے لے کر اگلے دن تک، اگلے دن اس کے ساتھ رات بھی آتی ہے، دن کا بھی مسئلہ ہے، تو 24 گھنٹے مکمل ہونے تک اگر ان 24 گھنٹوں کے اندر اس وضو کرنے والے، مسح کرنے والے نے اپنے پاؤں سے موزوں کو نہیں اتارا ہے، نہیں نکالا ہے، تو ان 24 گھنٹے مکمل ہونے تک جب بھی اس کو وضو کی ضرورت پڑے گی، چہرے کو دھو سکتا ہے، سر کا مسح کرے گا، ہاتھوں کو دھوئے گا، لیکن جب پاؤں کی بات آئے گی چونکہ موزے پہنے ہیں تب تک یہ موزہ کر سکتا ہے، ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن 24 گھنٹے مکمل ہو گئے، 24 گھنٹے مکمل ہونے کے بعد اگر اس کے پاؤں پر موزے پہنے ہیں تو اس صورت میں ان موزوں کو اتارنا لازم اور ضروری ہے۔
अहादीस के अंदर यही मसला है, जो मुकीम होता है, जो घर में होता है, जो हालत सफ़र में नहीं होता है, वो अपने मौज़ू पर 24 घंटे तक मसह कर सकता है, जब तक कि उसने उन मौज़ू को इन 24 घंटों के अंदर ना निकाला हो। तो फरमाते हैं मुद्दतुल मसही लिल मुकीम यौमुन व लैलतुन, मुकीम के लिए मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत एक दिन और एक रात। एक दिन 12 घंटे, एक रात 12 घंटे, तो ये 24 घंटों का फासला बनता है। कब से? जब से इसका वज़ू टूट जाए, लेकिन मोज़े पहने थे, वो वज़ू का टूटना ही इसकी मुद्दत मसह की इब्तिदा कहलाएगी। फिर उस इब्तिदा के बाद जब 24 घंटे मुकम्मल हो जाए तो इस वक्त तक, इस मुद्दत के अंदर अंदर तक रहते हुए ये इन मौज़ू पर मसह कर सकता है। व मुद्दतुल मसही लिल मुसाफिर, अगर इंसान हज़र में न हो, इकामत में न हो, बल्कि सफ़र पे हो, अपने घर से और घर की अपनी बस्ती की जो सरहदें हैं, उन सरहदों को छोड़ने के बाद जहाँ ये जाना चाहता है 77.5 किलोमीटर, अगर वहाँ 15 दिन कम रहने का इरादा हो, ये शख्स शरई मुसाफिर है। इसके लिए 3 दिन और 3 रातों तक मौज़ू पर मसह करने की इजाज़त है, यानी कि वो 72 घंटे बनते, 72 घंटों तक ये मौज़ू पर मसह कर सकता है। लेकिन शर्त वही है कि पहली मरतबा वज़ू करने के बाद जब उसने मोज़े पहन दिए, उसके बाद जब इसका पहली मरतबा वज़ू टूटा, उस वक्त को लिखेगा। उस वक्त से लेकर आइंदा 72 घंटे के अंदर अंदर तक, जब तक कि इसने मौज़ू को ना निकाला हो, इस मुद्दत के अंदर अंदर, सफ़र की मुद्दत के अंदर अंदर, इन 3 दिन और 3 रातों के अंदर अंदर, तब तक ये इन मौज़ू पर मसह कर सकता है। लेकिन जब सफ़र की मुद्दत मुकम्मल हो गई, इसके पाँव पर मोज़े लगे हुए और पहने हुए हैं, उनको उतारना ज़रूरी है। और या तो वज़ू करने की शक्ल होगी तो वज़ू करेगा, अगर वज़ू लाजिम नहीं है, सिर्फ़ पाँव को धोना इसके लिए काफ़ी है। तो फरमाते हैं मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातों के साथ इतनी मुद्दत तक मसह करना, यानी कि 72 घंटों तक मसह करने की मुद्दत मुसाफिर के लिए जायज़ है। ये तिरमिज़ी के अंदर रिवायत हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु सुइला अनिल मसही अलल खुफ़ैन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत के बारे में एक दिन पूछा गया, तो हुज़ूर ने फरमाया कि जो मुसाफिर होता है, लिल मुसाफिर सलासत अय्याम, मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातों तक मसह करने की इजाज़त है। वलिल मुकीमी यौमुन व माह लैला, कि मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात, यानी कि 24 घंटों तक मसह करने की इजाज़त है। और आगे एक रिवायत आती है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस है और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्क़ता अल मसह अलल खुफ़ैन लिल मुसाफिरी सलासत अय्यामिन व लयालिहिन्ना व लिल मुकीमी यौमन व लैला, कि हुज़ूर ने एक दिन ये कानून बनाया कि मसह जो मौज़ू पर किया जाएगा, अगर मुकीम की बात हो सिर्फ़ वो 24 घंटे तक मसह कर सकता है, अगर मुसाफिर की बात हो तो वो 72 घंटों तक मसह कर सकता है। तो साहिब किताब फरमाते हैं, तब तदिउ मुद्दतुल मसही मिनल वक्तिल्लज़ी हसल फ़ीही अल हदस ला मिनल वक्तिल्लज़ी लबिस फ़ीही अल खुफ़ैन। तो मौज़ू पर मसह करने की मुद्दत, इसका आगाज़ और इसकी इब्तिदा कब होगी? फरमाते हैं पहली मरतबा जब इस वज़ू करने वाले ने वज़ू किया, फिर उसने मौज़े पहन दिए, यानी कि पाँव धोने के बाद मौज़े पहन दिए, उस मौज़े पहनने के बाद जब इसका वज़ू टूटे, वो ही वक्त जो है इस मौज़े पर मसह करने की मुद्दत का इब्तिदाई वक्त शुरू हो जाता है। वही मैंने अर्ज़ किया, अगर वज़ू करने के बाद, मौज़े पहनने के बाद 12:10 पर इसका वज़ू टूट गया, तो यही 12:10 इसकी मुद्दत का आगाज़ और इब्तिदा कहलाएगी। बाज़ लोगों के जहन में ये है कि जिस वक्त उसने मौज़े पहन दिए, मसलन उसने वज़ू किया 11:30, पाँव को धोया 11:32 पर,
और उन पाँवों को धोने के बाद 12:33 पर इसने मोज़े पहन लिए। बाज़ी लोग समझते हैं कि 11:33 पर जो मोज़े पहन दिए ये है मोज़े पर मसा करने की मुद्दत। फरमाते नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मोज़े पहनने के बाद जब इसका पहला वज़ू टूट जाए उसके बाद उसी वक्त से लेकर इसके मसा की मुद्दत शुरू हो जाती है। कब तक? आइंदा 24 घंटे मुकम्मल होने तक। अगर ये मुसाफिर है तो 72 घंटे मुकम्मल होने तक। आगे फरमाते लव मसहल मुकीम सुम्मा साफर कबला तमामी मुद्दती है अकमल मुद्दतल मुसाफिर। एक शख्स घर में है, मुकीम है, ये मुसाफिर नहीं है। अगर इसने घर में रहते हुए इकामत के इरादे से मौजू पर मसा किया है जो कि 24 घंटे तक रहने के लिए है, लेकिन अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए, इसका इरादा हुआ सफ़र का और शरई सफ़र का, क्योंकि सफ़र में इसकी मसा अलल खुफैन की मुद्दत 24 घंटे से बढ़कर 72 घंटे हो जाएगी। तो फरमाते हैं अगर कोई किसी मुकीम ने मसा किया था मौजू पर, फिर वो इकामत की मुद्दत 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले पहले सफ़र को निकला, तो फरमाते हैं ये मुसाफिर की अब मुद्दत को पूरा करेगा। 72 घंटों पर ये अपने मौजू पर मसा कर सकता है। इसी तरीके से वलो अकामल मुसाफिर बादमा मसह यौमन व लैलतन इंतहत मुद्दतु मसी। अगर कोई मुसाफिर था, जम्मू में था, घर आने वाला था, वहाँ 72 घंटे तक उसने मसा करने के इरादे से मसा किया था, अब उसने 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले पहले ही घर पहुँचा। अचानक घर आने की ज़रूरत आई, एक मसला आया दरपेश के घर आना पड़ा। जिस वक्त उसने मसा किया था, मसा करने के बाद से लेकर घर आने की ज़रूरत पड़ने तक इसने सफ़र शुरू किया और 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले ही ये घर पहुंचा। घर पहुंचा, कुछ देर होने के बाद 24 घंटे मुकम्मल हो गए। अब चूँकि मुसाफिर से मुकीम हो गया, लिहाजा उसने वहाँ सफ़र के लिए जो है मसा किया था जो 72 घंटे बनते थे, लेकिन घर पहुंचा और अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे। अब कुछ घंटे होने के बाद 24 घंटे मुकम्मल हो गए। इसका जो खुफैन पर किया हुआ मसा था 72 घंटे के लिए, वो 72 के बजाय अब 24 के लिए मुतअय्यन हो जाएगा। जो ही 24 घंटा मुकम्मल हो जाएगा, इसके मसे की मुद्दत मुकम्मल होगी। अब या तो वज़ू की ज़रूरत है तो वज़ू करेगा, या वज़ू मुकम्मल है तो मोज़े उतार कर पाँव को धोएगा। वलो अकामल मुसाफिर वक़द मसह अकल मिन यौमिन व लैला। अगर कोई मुसाफिर मुकीम हो गया, सफ़र पे था लेकिन मुकीम हो गया, अचानक घर पहुंचा, वक़द मसा अकल मिन यौमिन व लैला, उसने मसा किया था लेकिन एक दिन एक रात से पहले पहले, अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे। युकमिलु यौमन व लैलतन मुद्दतल मुकीम, वो मुकीम की मुद्दत मसा को मुकम्मल करेगा। यानी कि 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले वो घर पहुँचा, अब घर में रहकर वो मुकीम की मुद्दत उसी पर अमल करेगा। 24 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे तो अब मौजू को उतारेगा, या अगर वज़ू की ज़रूरत हो तो वज़ू दोबारा करेगा। लिहाजा ये मसाइल है, इन मसाइल का समझना अज़हद लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन एक और मसला है जिसका समझना, ये जो एक बात आई थी कि जिस वक्त इंसान का हदस लायक हो जाए उसी वक्त वज़ू टूट जाता है। पहली मरतबा वज़ू करने के बाद, पाँव धोने के बाद, मोज़े पहनने के बाद जब उसका पहला वज़ू टूट जाए उसी वक्त इसका वज़ू टूट जाता है। अब इंसान का वज़ू मुख्तलिफ़ चीज़ों से टूटता है, मसलन पेशाब निकल आया, पाखाना निकल आया, इसी तरीके से नींद की वजह से, खून के निकलने की वजह से, काई के आने की वजह से। अब मसलन उन नवाकिज़ वज़ू की तोड़ने वाली चीज़ों में एक चीज़ है नींद। अब ये 12:10 पे सोता है, लेकिन 2:05 पे बेदार होता है। अब क्या इसका वज़ू 12:10 पे टूटा हुआ माना जाएगा या 2:02 पर? फरमाते हैं हदस का साबित होना ये अव्वल फ़ुर्सत में माना जाएगा। जिस वक्त ये सोया उसी वक्त माना जाएगा कि इसका वज़ू टूटा, और इसी वक्त से इसके मौजू पर मसा की मुद्दत को शुमार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस वक्त ये बेदार हुआ, या एक शख्स का खून निकल आया, मिसाल के तौर पर 1 बजे इसका खून आना शुरू हो गया, कतरा 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 2 बजे,
اب 2 بجے پر یہ ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں 1 بجے قطرات آنے سے اس کا وضو ٹوٹا اور ساتھ میں وہی 1 بجے اس کے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کا آغاز اور ابتدا اس کو شمار کیا جائے گا. 2 بجے کی مدت 2 بجے کے وقت کو مدت میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ 1 بجے سے اس مدت کو شمار میں لایا جائے گا. اس کا سمجھنا ازحد لازم اور ضروری ہے. اس میں بہت زیادتیاں ہوتی ہے، بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہے. اس کو سمجھنا ازحد لازم اور ضروری ہے. اللہ مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.